Today we are going to learn subject maths standard 8 chapter number 16 playing with numbers. In this chapters what we have to learn, I will discuss it. In this chapter we have to learn numbers in general form, then puzzles related to numbers, interchanging digit of 2-digit number, interchanging digit of 3-digit number, making new numbers with given digits, then letters instead of numbers, then divisibility test of 2, 3, 5, 7, 9, 10 and 11. Okay, this point we have to learn in this chapter. So let's we start from that point. Maths is a subject full of fun, magic and wonders. A 2-digit number whose 10th digit is a and unit digit is b can be written as 10a plus b. A. Second point. A 3-digit number whose 100th digit is a, 10th digit is b and unit digit is c can be written as 100a plus 10b plus c, where a in bracket not belongs to 0, is not equal to 0. B and C are whole number. B and C are whole number. A number is divisible by 2 if the unit digit of the number is divisible by 2. A number is divisible by 2 if the unit digit of the number is divisible by 2. Next point. A number is divisible by 3 if the sum of digit is divisible by 3. A number is divisible by 5 if the unit digit of the number is either 5 or 0. Next point. A number is divisible by 9 if the sum of the digit of the number is divisible by 9. Then next point. A number is divisible by 10 if the unit digit is 0. A number is divisible by 11 if the difference of the sum of the alternative digit is either 0 or divisible by 11. That number will divisible by 11. Now let's we start that example. What kind of question in this chapter? See here. First question. Write the following numbers in generalized form. Which form? Generalized form में लिखना है. कैसे लिखना है देखो, यहाँ 25 दिया है. 25 का कैसे करना है? सो 10 टू ज़ा 20 एंड प्लस 5 मीन्स उसका जो जनरलाइज फॉर्म है वैसा करना है आपको. सो ए बी इज इक्वल टू 10a प्लस बी, यानी कि ये 10a 2 प्लस 5 लिया. ओके, तो इसका क्या लिया है यहाँ पर? b लिया है. तो 73 का भी वैसा ही 10 7 जा प्लस 3. तो ए बी इज इक्वल टू ए बी यानी कि यहाँ 10 7 जा 70 है वो. ओके, ए बी प्लस बी यानी कि 3. ओके, 129 100 इंटू 1 तो 100 प्लस 10 इंटू 2 यानी कि 20 प्लस 9. तो यहाँ पर ए बी सी लेना पड़ेगा. 3 डिजिट है इसलिए. तो 100a प्लस 10b प्लस c. अंडरस्टूड? आई थिंक दिस अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल. सेकंड वन, सेकंड क्वेश्चन. राइट द फॉलोइंग इन द यूजुअल फॉर्म. आपको यूजुअल फॉर्म में लिखना है, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करना है देन प्लस करना है. तो 10 5 से 50 प्लस 6 क्या करना? 10 प्लस 5 10 मल्टीप्लाई 5 प्लस 6 तो 50 प्लस 6 इज इक्वल टू 56. एंड सेकंड वन ऑल्सो दिस वे. 100 मल्टीप्लाई 7 प्लस 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8. सो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा. 700 प्लस 10 प्लस 8 यानी कि 718. थर्ड नंबर में भी वैसा ही करना है. सी हियर, ट्राई दिस. पेज नंबर 251 in your textbook. Check what the result would have been if Sundaram had chosen the numbers shown below. यहाँ पर 27 है नंबर, तो कौन सा रिजल्ट आता है वो देखना है यहाँ पर. 27. How we can solution this? How we can solve this sum? So let Sundaram choose the number 27, है ना. सुंदरम ने नंबर चूज किया है 27. देन
रिवर्स नंबर, उसका रिवर्स नंबर का देना है। 27 का रिवर्स नंबर क्या हो जाता है 72। देन यू हैव टू सम ऑफ दैट टू नंबर, सम ऑफ दिस टू नंबर, यानी कि 27 प्लस 72 का प्लस करना है। तो 99 हुआ। नाउ 99 विल बी देयर। 99 क्या होगा 11 9 जा, क्या होगा 11 9 जा। तो ये 11 एज इट इज़, और 9 का क्या होता है 2 प्लस 9 7 करते हैं तो 9 होगा। ओके, तो उसका सम क्या आया 11, क्या आया आंसर 11। Sum of the digit of chosen number is 11. Understood? Okay, next question 39. Let Sundaram choose the number 39, then reverse number 93. उसका सम करो, सम ऑफ दिस टू डिजिट, उसका सम होता है टोटल 132। तो यहाँ पर भी 132 आया, तो 11 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना होगा। तो 11 12 किसका है 3 प्लस 9 का है ना, तो 11 आया, उसका भी सम ऑफ द डिजिट ऑफ चूजन नंबर इज देयर। देन 64 इज देयर। लेट सुंदरम चूज द नंबर 64, उसका रिवर्स 46 होगा। तो सम ऑफ टू डिजिट 110 हुआ। 110 तो 11 10 जा, तो 11 है 6 क्या 10 क्या है 6 प्लस 4। ओके, यहाँ पर 11 सम ऑफ द डिजिट इज what come 10। ओके, 17 नंबर, उसका भी ऐसा नंबर लेना है। लेट्स नंबर यू टेक 17, रिवर्स नंबर उसका 71 17 एंड 71 का प्लस करते तो 88। तो क्या होगा उसका देखो 88 है तो 11 8 जा है, प्लस यहाँ पर 11 तो 1 एंड 7 प्लस करते हैं तो 8 होगा। ओके, so sum of the digit of the chosen number. From the above result, it is clear that the sum of two digit and number obtained by the interchanging its digit is multiple of 11। उसका multiple of 11 है। okay, it's divisible by 11। I think you understood this thing. Check what the result would have been if Sundaram had chosen the numbers shown below। 17 दिया है तो क्या करते हैं देखो, तो सुंदरम चूज द नंबर 17, देन रिवर्स नंबर 71, डिफरेंस ऑफ दिस टू नंबर। तो 71 में से 17 निकालो तो कितना होगा 54। तो 54 एक 9 6 जा 54 होते हैं। ओके, तो 9 यहाँ पर 7 माइनस 1 करना, तो 9 डिफरेंस आएगा। क्या आया 9 8। द डिफरेंस ऑफ डिजिट ऑफ द चूजन नंबर इज देयर। ओके, चेकर वन देखो 21। लेट सुंदरम चूज द नंबर 21, उसका रिवर्स 12 हुआ और उसका डिफरेंस निकालते हैं तो 9 डिफरेंस आया। ओके, तो 9 इज देयर। 9 1 जा, यहाँ 9 2 माइनस 1 करो, ये जो नंबर है 21 उसका 2 माइनस 1 यानी कि 1 होगा। ओके, तो डिफरेंस ऑफ द डिजिट ऑफ द चूजन नंबर इज देयर। 96 में भी वैसा ही करना है। लेट सुंदरम चूज द नंबर 96, देन रिवर्स नंबर 69। 96 में 69 निकालते हैं 27 एंड उसका डिफरेंस होगा। सो 9 3 जा 27 होता है, एंड 9 में से 6 निकालो, 96 का है तो 9 में से निकालो 3 रहेगा। ओके, so the difference of the digit is there. Then next, check what the result would have been if Meenakshi had chosen the numbers shown below. In each case, keep a record of the question obtained at the end. 132 देखो यहाँ पर क्वेश्चन है। लेट मीनाक्षी चूज द नंबर 132, उसका रिवाइज नंबर होता है 231। ओके, तो डिफरेंस उसका निकालते हैं 231 माइनस 132, तो 99 डिफरेंस आया। अब उसका डिवाइड करना है 99 को 99 से डिवाइड करेंगे कि तो क्या रहेगा 1, सो रिमाइंडर इज 0। अनदर वन 469। लेट मीनाक्षी चूज द नंबर 469, द रिवर्स नंबर 964, उसका डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस ऑफ दिस नंबर इज 964 माइनस 469, सो आंसर इज 495। सो और 495 को 99 से डिवाइड करो, देन यू विल गेट आंसर 5, सो रिमाइंडर इज 0। इन द सेम वे अदर्स ऑल्सो यू कैन डू दिस वे। अनदर एग्जाम्पल, check what the result would have been if Sundaram had chosen the number shown below. Let Sundaram 417 क्वेश्चन है यहाँ पर 417।
लेट सुंदरम चूज द नंबर 417, उसका रिवर्स नंबर बाय इंटरचेंजिंग, उसका डिजिट इंटरचेंज करना है यहाँ पर। इंटरचेंजिंग द डिजिट वी गेट 2 नंबर्स, हमें 2 नंबर मिलता है इंटरचेंजिंग करते हैं। तो देखो विच आर 741 होता है, देन 147 भी बनता है। ओके, तो उसका क्या करना है, सम ऑफ दिस 3 डिजिट, देन आफ्टर यू हैव टू डू सम ऑफ ऑल 3 डिजिट, एंड व्हाट इज आंसर 1332। नाउ डिवाइडिंग द सम बाय 37, और 37 को डिवाइड करना, कितने से 37 से डिवाइड करना उसको, तो आंसर मिलेगा 36, उसका रिमाइंडर भी 0। लेट सुंदरम चूज द नंबर 632, by interchanging digit we get 2 numbers which are 263 and 326। देन इसका आंसर है 1221, और देन यू डिवाइड बाय द सम, डिवाइडिंग द सम बाय 37, उसको 37 से डिवाइड करते 33 मिलेगा, तो रिमाइंडर 0। ओके, दिस वे यू हैव टू डू। ओके, यहाँ एक्सरसाइज देखते हैं 16.1। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड गिव रीजन फॉर द स्टेप्स इन्वॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर 3a + 25, आंसर इज B2। तो यहाँ पर हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। कैसे, देखो यहाँ पर दिया है सॉल्यूशन, देखो हियर वी हैव 2 लेटर्स A एंड B हुज वैल्यू आर टू बी फाउंड, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, कितनी है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। देन हाउ वी कैन फाइंड आउट, सी हियर फर्स्ट टू ऑब्जर्व, बाय ऑब्जर्विंग द वंस कॉलम वी हैव a + 5 एंड वी गेट 2 फ्रॉम दिस, हमें मिलता है 2 मिलता है, a + 5 करते हैं तो 2 मिलता है आंसर। सो अ नंबर हुज वंस डिजिट इज 2, फॉर दिस a हैज़ टू बी 7, क्या होना चाहिए, a हैज़ टू बी 7 होता है तो ही 2 आएगा, यानी कि a + 7 इज इक्वल टू, सॉरी a + 5 इज इक्वल टू 7 + 5 करते हैं तो ही 12 होता है। ओके, तो 1 ऑफ साइड कैरी ओवर होगा। ओके, नाउ फॉर द सम इन टेंस कॉलम वी हैव 1 + 3 + 2 करना, देन यू विल गेट b। देखो 1 + 3 + 2, देन यू विल गेट b, देन 1 + 3 4, 4 + 2 6, तो b की वैल्यू क्या होगी 6। देखो तो यहाँ पर ऐसे सम करना है आपको, 37 + 25 तो 62 आंसर आएगा। तो इसकी a की वैल्यू कितनी है 7 एंड b की वैल्यू 6। आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस वन। इन द सेम वे सेकंड वन ऑल्सो सेम थिंग। देखो यहाँ पर देखो 4a 9 8। ओके, तो यहाँ पर 3 आया, कैसे 3 आया, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 3 आएगा, a की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि 8 में कितने ऐड करते हैं तो 13 होता है, 5 होगा, क्या होगा 5 ऐड करना होगा। देखो यहाँ पर दिया है, देखो वी हैव 3 लेटर्स a b and c whose value are to be found, by observing the ones column we have a + 8 and we get 3 from this, so number whose ones digit is 3, for this a has to be 5, है ना, तो 5 + 8 कर दे तो 13 हुआ। नाउ फॉर द सम इन टेंस कॉलम, टेंस कॉलम में भी करना है, तो उसका जो कैरी आया पहले 1 लिखना होगा, 1 + 4 + 9, तो सी बी मिलेगा हमें। सी बी कितना है यहाँ पर 14 होगा, सी बी कितना होगा 14, इसमें हमें बी फाइंड आउट करना है। देखो बी 4 एंड सी कैरी ओवर यानी कि 1। ओके, तो हमें आंसर मिल गया 45 + 90 है तो 143, तो ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू 4 एंड सी की वैल्यू 1। दिस वे यू हैव टू डू। देन मल्टीप्लिकेशन, इफ मल्टीप्लिकेशन इज देयर हाउ वी कैन डू, सी हियर वी हैव टू a हुज वैल्यू इज टू बी फाउंड, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर आंसर है 9a। ओके, तो सिंस प्रोडक्ट ऑफ वंस डिजिट फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, a × a इज इक्वल टू a होना चाहिए, सो इट मस्ट बी 1 5 और 6, व्हेन a इज इक्वल टू 1 देन व्हाट 11 1, तो बट द प्रोडक्ट इज 9a होना चाहिए, सो a इज इक्वल टू 1 इज नॉट पॉसिबल, सो व्हेन a इज इक्वल टू 5 लेते हैं तो देन व्हाट हैपन 5 5 जाओ, ओके 5 is not possible, here also not possible, when you take 6, so what will happen, see a is equal to 6 लेते हैं तो क्या होता है 16 6 जा तो 96, ओके ये होता है 9
16 तो सेम होता है। ओके, तो ए इज इक्वल टू 6। इन द सेम वे अदर सम यू डू योर सेल्फ। ओके, देखो यहाँ पर दूसरा भी ये मल्टीप्लिकेशन वाला है। ऐसा देखो 5 नंबर का ए बी मल्टीप्लाई 3। हियर वी हैव टू 3 लेटर्स ए बी एंड सी हुज वैल्यूज आर टू बी फाउंड। हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यूनिट डिजिट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी, सो बी मस्ट बी आइदर 0 और 5। व्हेन बी इज 0 देन व्हाट हैपन? 0 3 is 0, okay, and a is there, c is there. So then after when b is 5 लेते हैं तो क्या होता है? then a 5 multiply 3 कर देते 15, 1 carry over. So now unit digit of 3 multiply is equal to a, so a must be either 0 or 5, but a cannot be 0, because if a is equal to 0 then ab becomes 1's digit number, so a must be 5 and multiplication is either 55 multiply 3 or 50 multiply 3. So 55 multiply 3 then 165. Here a is equal to 6, so this is not possible. So 50 multiply 3 is 150. Okay, so thus a is equal to 5, b is equal to 0 and c is equal to 1. I hope that you can understand this first exercise. So you have to write this question in your notebook. Up to this you have to write in your notebook. Thank you.